Hi friends, let's start with the second part of the chapter ray optics. Second part is first part was dealing with reflection and second part we go on for refraction. Now पहले देखते हैं what is refraction. Refraction क्या होता है वो समझते हैं. Refraction यानी क्या? तो it is defined as bending of light ray when it travels from one medium to another medium. When a light ray moves from one medium to another medium, when we say when light ray changes medium, then it deviates from its original path. Such a phenomenon is called refraction. Let's take some terminological words of this refraction. Suppose this is the boundary separating two media, let's say AB. यहाँ पे medium number 1 and here it is medium number 2. Two separate medium. यहाँ से light ray आया, this is the light ray which is incident on the border separating the two. Let's say PQ. Q is the point of incidence. This is the incident ray. Normal to the surface at point of incidence. तो यहाँ पे नाम देते हैं, इसको बोलते हैं MN. AB is boundary separating two medium. Boundary separating two medium. Or let's say media. Then PQ is the incident ray. PQ को बोलेंगे incident ray. Q will call it as point of incidence. Q we call it as point of incidence. And MN now becomes normal to surface at point of incidence. At point of incidence. Normal to the surface at point of incidence. Okay, ये हो गया MN. फिर यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, एंगल दिस इंसिडेंट रे मेक्स विद नॉर्मल, दैट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस. I becomes the angle of incidence. I is the angle of incidence. Okay, ये हो गया. फिर light was to travel straight, जाना था उसे सीधा, but due to presence of second medium, it bends either towards the normal or away from the normal, as the case may be. It bends either towards the normal, यहाँ से इस तरफ bend होगा या यहाँ से उस तरफ bend होगा. That bending, तो यहाँ पे पता, let's take it towards the normal, U bend होगा. Let's say QR. तो QR becomes a refracted ray. QR becomes a refracted ray. बराबर है? And ये जो एंगल हुआ with normal, QR का एंगल with normal, that we call it angle of refraction, R. Angle of refraction, R. Okay, R becomes the angle of refraction. Okay. Now, जाना था इसे सीधा यूं along the dotted line, but it has bent this much on towards the normal. तो ये जो bending angle हुआ, जाना था यूं पर bend हुआ यूं, जाना था यूं पर bend हुआ इतना, ये जो bending हुआ इसको बोलते हैं angle of deviation, we denoted by delta. So here we said delta is a angle of deviation. Okay, angle of deviation. ये हो गया phenomenon of refraction. तब मैं उसके जो wordings normally use करता हूँ, we have to get acquainted with such wordings so that while studying we should not be using improper words. तो उसके proper terms जो use करना वो यहाँ पे आ गए. Incident ray, point of incidence that is Q. Q हो गया point of incidence this one. Then incident angle of incidence, normal to the surface at point of incidence. Then refracted ray. फिर ये MN normal है, angle of refraction ये उसका original path deviated by delta angle. Okay, ये हो गया. Certain words we use for this. Now, अगर मान लो ये जो surface, ये जो medium 2 है, वो यहाँ पे खत्म हो गया. Surface AB है separating the two media. Example ले सकते हैं इसमें surface AB क्या, अगर आप चाहें तो example ले सकते हैं. Suppose air to water, air to glass, कुछ भी हो सकता है अलग-अलग. Combination of different media. Okay. Now, अगर मान लो यहाँ पे medium number 2 खत्म हो गया, तो फिर इस रे का क्या होगा, QR रे का, the refracted ray will be incident at point R on the other surface. यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, बराबर है. अब moving from medium 2 to medium 1, again medium changes, तो will bend, जाना था सीधा उसका तो bend हुआ, suppose यूं bend हुआ, let's say RS. तो in that case RS is called emergent ray. In that sense, in that case RS is called emergent ray.
और रे ऑफ इमर्जेंस। ओके, फिर ये एंगल ई बोल देते हैं इसको, ई एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर ये मीडियम 2 खत्म होता है और फिर रे वहां से बाहर आ रहा है तो बराबर है। इनिशियली विल नॉट बी डिस्कसिंग द सेकंड मीडियम, सेकंड सरफेस विल बी टेकिंग ओनली वन सरफेस इनिशियल। पर ये तो अगर इनकेस इस मीडियम से बाहर आ रहा है वापस मीडियम 1 में, तो ये इमर्जेंस एंगल हो गया, इमर्जेंट रे हो गया। क्लियर? तो ये कुछ वर्ड्स हैं रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन, प्लीज गो थ्रू देम, देन विल टेक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेट्स गो ऑन फॉर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कौन से हैं? 3 लॉज हैं, बराबर? तीनों तीन एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहला लॉ, फर्स्ट लॉ सेज दैट एंगल इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द सरफेस एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। तीनों तीन सेम प्लेन में, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। सेकेंडली, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द ईदर साइड ऑफ द नॉर्मल। तीनों तीन सेम प्लेन में एंड नॉर्मल के इधर साइड पे, यानी एक अगर नॉर्मल के इस तरफ है तो दूसरा नॉर्मल के उस तरफ। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर से एक बार, when the incident ray, normal and the refracted ray lies in the same plane and incident ray and the refracted ray are on the either side of the normal. second law बोलता है when light ray moves from a rarer to denser medium, from rarer to denser medium, it bends towards normal, okay? And secondly, when it moves from denser to rarer medium, it bends away from normal। यानी किस कंडीशन में नॉर्मल की तरफ जाएगा, किस कंडीशन में मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दोनों चीजें यहां डिफाइन कर दी। अगर ये मीडियम रेयर है एज कंपेयर टू सेकंड वन, रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी जो केस हमने लिया वो रेयर टू डेंसर का लिया हुआ है। अगर डेंसर टू रेयर जाता तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस तरफ आने की बजाय उस तरफ जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन वही डिफाइन करते हैं पर उस तरफ जाता, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ओरिजिनल पाथ है, ये नॉर्मल है। अगर इट इज रेयर टू डेंसर तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये उसका दूसरा रूल। ओके, तीसरी बात, the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction। तीसरा तो पॉपुलर लॉ है, रेशियो ऑफ sin i upon sin r, sin of angle of incidence and sin of angle of refraction का रेशियो is always constant। ये थर्ड लॉ बोलता है, is always constant and this constant is called refractive, इसको बोलते हैं refractive index of medium 2 with respect to मीडियम 1। ये 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी 2 में रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है ये सोचो, सेकंड मीडियम में। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, एंड इट इज डिनोटेड बाय n21। n21 क्या रीड करते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट्स n21। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये हो गया तीसरा लॉ, बराबर है। हाँ, लॉ बोलता है ये कांस्टेंट है, पर इस कांस्टेंट को नाम दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो लॉ में नहीं बोला है, उसे हमें सेपरेटली लेना है। ओके, तो 3 लॉ, 1 2 और 3, 3 लॉस। इसमें जो कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 बोलते हैं, यानी n21 बोलेंगे, दैट sin i upon sin r। दिस सेकंड थर्ड लॉ दैट इज कॉल्ड that was given by scientist named Snell, so it's called Snell's law। ये थर्ड लॉ इज कॉल्ड Snell's law एंड स्नेल ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया था। ओके, ये हो गया 3 लॉस रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन। ओके, अब हम चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ इंट्रोड्यूस किया तो उसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ तक कोई तकलीफ हो, जस्ट गो टू द नोट्स, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम जस्ट गिव मी अ कॉल। चलो अब थोड़ी बातें करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या चीज, पहले वो समझते हैं।
तो स्नेल्स लॉ में जो कांस्टेंट डिफाइन किया है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो थर्ड लॉ था स्नेल्स लॉ, उसमें जो कांस्टेंट डिफाइन किया उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स क्या? इंडेक्स मीन्स इट्स अ नंबर, index means it's a number which gives how much refraction does a given medium do. इंडेक्स क्या है? इंडेक्स बताता है कि कितना रिफ्रैक्शन करता है ये मीडियम, गिवन मीडियम, हाउ मच इट रिफ्रैक्ट्स, रिफ्रैक्शन है डिविएट्स द लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, इट गिव्स द प्रोपोर्शन ऑफ डिफ्रैक्शन. उस प्रोपोर्शन को एक नंबर दे दिया है एंड उसने उस नंबर को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाने वाली रे को कितना बेंड किया है, कम बेंड किया है, सॉरी बेंडिंग, डेविएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. चलो पहले ओरिजिनल पाथ बताता हूँ, ये ओरिजिनल पाथ है, कम डेविएशन किया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ज्यादा डेविएशन किया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा. बराबर है. ये दोनों में देखो तो इसका बेंडिंग कम है एंड इसका बेंडिंग ज्यादा है, सेकंड रे का, लेट्स से रे 1 रे 2, 1 का बेंडिंग कम है एज कंपेयर टू 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज कंपेयरिंग टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीडियम फॉर दिस रे कंपेरिजन में ये ज्यादा होगा. क्यों? बेंडिंग ज्यादा किया. यानी गिवन मीडियम लाइट रे को कितना बेंड करता है, प्रोपोर्शन ऑफ बेंडिंग इज शोन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज शोन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड. एक बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या? तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में लाइट रे 1 दैट इज इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मीडियम एंड ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, मीडियम 1 मीडियम 2. बराबर है. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मीडियम 1 इज टेकन एज एयर और वैक्यूम एंड मीडियम 2 द गिवन मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ रहे हैं. बराबर है. तो रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम. इट्स रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ये रेशियो को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग हमेशा मीडियम नंबर 1 वी टेक इट एज एयर और वैक्यूम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इज c एंड मीडियम 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड v है. वी नो दैट लाइट रे चेंज स्पीड इन द अकॉर्डिंग टू द मीडियम. बराबर. मीडियम चेंज होगा तो लाइट की स्पीड चेंज होती है. तो c अपॉन v दैट इज रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कंपेयरिंग विद एयर. तो एयर के रिस्पेक्ट में कितना बेंडिंग हुआ गिवन मीडियम ने किया उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला में ऊपर c फिक्स है, यानी लाइट रे स्टार्टिंग फ्रॉम एयर टू गिवन मीडियम. ओके. अब आप सोचोगे रेशियो ऑफ स्पीड काय को, व्हाई रेशियो ऑफ स्पीड? वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड वेव्स जब पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15, उसके अंदर हमने देखा था कि व्हेन अ वेव ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन अ वेव ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज. उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है पर उसकी स्पीड जरूर चेंज होती है, क्योंकि डिपेंड्स होता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, के मीडियम में कितने पार्टिकल्स हैं, मीडियम का कितना इलास्टिसिटी है, उस पर डिपेंड करता है कि स्पीड कितना है. तो अलग अलग मीडियम की डेंसिटी एंड पार्टिकल्स का इलास्टिसिटी बोथ आर डिफरेंट. इसलिए द मीडियम का टेंडेंसी ऑफ बेंडिंग चेंजेस, स्पीड चेंजेस, एंड स्पीड चेंज होगी तो बेंडिंग भी होगा. आप बोलोगे स्पीड चेंज होगी कैसे? तो अगर मान लो आप व्हीकल चला रहे हैं, यू आर मूविंग विद टू व्हीलर, यू हैव स्पीड समवेयर अराउंड लेट्स से 40-50 और लेट्स से 60 की स्पीड पर आ रहे हो एंड सामने कीचड़ आ गया, दलदल आ गया, या सम ड्राई सैंड बीच पर आ गए. तुम नॉर्मल रोड से बीच पे घुसे तो सैंड में आ गए. आप एज सुन एज यू एंटर द मीडियम, एज यू हैव टू चेंज द मीडियम, रोड से आप कीचड़ में आए या रोड से सैंड में आए, विल देयर बी एनी डिफरेंस इन योर स्पीड, विल देयर बी एनी डिफरेंस इन डायरेक्शन? आप ध्यान से नोट करें कि जब कभी भी ऐसे इवन पानी आ गया हो रोड पे, तो पानी में जब एंटर होते हैं तो भी आपका स्टीयरिंग थोड़ा हिल जाता है, मतलब पाथ थोड़ा डिविएट हो जाता है. सेकेंडली स्पीड में फर्क पड़ जाता है. व्हाई दिस हैपेंस? एज सून एज यू एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द मीडियम डेंसिटी चेंजेस एंड हेंस वी फाइंड दैट देयर इज अ चेंज इन स्पीड, एंड ड्यू टू चेंज इन स्पीड थोड़ा बहुत डेविएशन हो जाता है, एंड दैट अकाउंट्स फॉर रिफ्रैक्शन. जैसा हमारी हालत है वैसे लाइट रे की भी होती है. लाइट रे बीइंग अ वेव when travels from one medium to another medium, its speed changes, therefore it is slightly deviated, that is refraction occurring. Okay, now absolute refractive index हम लोग क्या लेते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में हमेशा बात करते हैं. इसके कुछ एग्जांपल है. फॉर एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेंगे? 1, क्योंकि एयर अपॉन एयर से एयर में जा रहा हूँ तो c अपॉन v.
वैक्यूम से एयर में आ रहा हो तो भी 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर वाटर, अगर एयर से वाटर में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिलता है, इट इज 4/3 और यू कैन से 1.33, मोर एग्जैक्ट 4/3 एंड अगर राउंडिंग वैल्यू है तो 1.33। एंड फॉर ग्लास, यानी अगर लाइट रे एयर से ग्लास में जा रहा हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। ये वैल्यूज फिक्स हैं, दीज वैल्यूज आर फिक्स्ड। इफ इट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, डायरेक्टली दिया डेटा में, अगर ये दे दिया है तो फाइन, नहीं दिया हो तो यू कैन रेडिली एक्सेप्ट दीज वैल्यूज। फॉर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, वाटर के लिए 4/3, ग्लास के लिए 1.5। ओके, ये फिक्स वैल्यूज है। नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट आप इन्हें ले सकते हैं, यू नीड नॉट सर्च अबाउट द वैल्यूज। ओके, एयर, वाटर, ग्लास के बारे में रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस वन। एब्सोल्यूट है ना, एयर से एयर, एयर से, अब एयर से एयर तो क्या होगा, C/C हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो सिंपली एक्सप्लेनेबल हो गया। एयर से वाटर, एयर से ग्लास। अब देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन 1 है। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन 1, व्हाट इट मींस, sin I upon sin R is more than 1. What does it mean? Sin I is more than sin R. अब sin being an increasing function, we say I greater than R. यानी रिफ्रैक्शन एंगल इज स्मॉलर देन इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल के कंपैरिजन में ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्रैक्शन एंगल छोटा है। मतलब क्या हुआ, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये उसका नॉर्मल पाथ था, उसका ओरिजिनल पाथ था। आई के कंपैरिजन में आर कम है, इसलिए बेंड हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल। सो दिस शोज देयरफॉर बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है तो लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 है तो sin I upon sin R is less than 1, therefore sin I is less than sin R, therefore bending away from normal. Light ray bends away from normal in case of refractive index less than 1. Okay, ये इस पर से पता चलता है ये सिचुएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कनेक्टेड, बेंडिंग अवे और टुवर्ड्स द नॉर्मल। चलो दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं क्या है, तभी अपने सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना क्या, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट था है ना उस मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर, स्टैंडर्ड के साथ में कंपैरिजन था। तो यहाँ रिलेटिव मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, यानी एक मीडियम 1 है, दूसरा मीडियम 2 है। मीडियम 1 में लाइट पे आ रहा है, bends towards or away from the normal as per the case medium 2 में, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ना यहाँ पे फर्क क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम 1 वाज एयर, दैट इज फिक्स्ड, तो एयर से गिवन मीडियम में आता है। यहाँ कोई भी मीडियम से कोई भी मीडियम में, आप बोलोगे कोई भी मीडियम से कोई भी मीडियम मतलब क्या, सपोज यहाँ पे वाटर है एंड यहाँ ग्लास है, सपोज मतलब पानी से ग्लास में जाए, पानी से ग्लास में कैसे आएगा, अरे यू टेक अ ग्लास स्लैब, पुट इट इन वाटर एंड मेक लाइट इंसिडेंट, तो लाइट पहले हवा एयर से वाटर में आएगी, वाटर से ग्लास में एंटर होगी, तो एंटरिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास वी गेट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मीडियम 1 एयर ले लो तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। अगर मीडियम एयर ले लो, फर्स्ट मीडियम एयर ले लो, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। क्लियर अबाउट दिस? अच्छा, अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं ईटा 2 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि बेंडिंग 2 में हो रहा है, रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन सेकंड मीडियम में हो रहा है, फर्स्ट में नहीं हो रहा है, सेकंड मीडियम में हो रहा है। तो सेकंड मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, यहाँ पे क्या था, C/V, C यानी पहले मीडियम में स्पीड, V यानी दूसरे मीडियम में, तो यहाँ V1/V2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं, when they traveling from 1 to 2, speed in 1 upon speed in 2, speed in 1 upon speed in 2, that's how we define the ratio of speed of light in medium 1 to medium 2 is called refractive index of 2 with respect to 1, ये relative refractive index हो गया। relative refractive index में से इंडिपेंडेंट कोई भी दो मीडियम का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एंड एज पर द कॉम्बिनेशन स्पीड बदलेगी, अकॉर्डिंगली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा। क्लियर? चलो इसको और थोड़ा आगे ले जाए तो ईटा 2 1 इज इक्वल टू V1/V2, लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय छोटा c, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय छोटा c एंड वी मेक कॉम्बिनेशंस, C/V2 ले लिया अपॉन ये C/V2 ऊपर ले लिया,
अपॉन सी बाई वी वन, नीचे ले लिया। ना सी बाई वी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मीडियम 2 का हो गया एंड ये मीडियम 1 का हो गया। सो इट कैन आल्सो बी गिवन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्लेक्ट टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब अगर इधर कॉमन कनेक्ट करते हैं इसको, eta 2 1 is bigger than 1, so n2 is upon n1 is bigger than 1, तो n2 is bigger than n1, n2 is bigger than n1, तो दूसरे का अगर डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। तो पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, दूसरे का ज्यादा हो तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, दूसरे का कम, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन करो, अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रहे हैं, फर्स्ट मीडियम इज हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, दूसरे में ज्यादा है तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। बराबर है। चलो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 बोलते हैं, यहाँ का n2 बोल देते हैं। n21 bigger than 1 implies n2 by n1 is bigger than 1 implies n2 is bigger than n1। तो n1 एंड इस केस में क्या होता है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, अब ये n2 is bigger than n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शोज ऑप्टिकल डेंसिटी, इट्स बेस्ड ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब ये नॉर्मल डेंसिटी नहीं है। नॉर्मल डेंसिटी तो मास के बेस होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, वो नहीं है। ये ऑप्टिकल डेंसिटी लाइट को ध्यान में रखते हैं। तो अगर ईटा इज लो देन इट्स कॉल्ड रेयरर मीडियम। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, ईटा रिप्रेजेंट्स ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो ईटा लो होगा, एंड ऑप्टिकल डेंसिटी अगर हाई है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हाई है, मतलब इट इज डेंसर मीडियम। तो डेंसर टू रेयरर जो बोल रहे थे हम, वो ऑप्टिकल डेंसिटी को ध्यान में रख के था। इट्स नॉट कीपिंग इन माइंड द मास डेंसिटी, जो लेते हैं मास अपन वॉल्यूम वाली नहीं, ये लाइट के लिए, लाइट के मोशन के लिए। तो ईटा अगर लो है तो रेयर मीडियम बोलते हैं, ईटा अगर हाई है तो डेंसर मीडियम। तो यहाँ डेंसर और रेयर, तो रेयर टू डेंसर, दे आर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो देयरफॉर हियर व्हाट वी से, इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देयरफॉर टुवर्ड्स नॉर्मल। एंड रिवर्सली अगर eta 2 is less than 1 तो फिर अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो क्या होगा। ओके, ये रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी। ओके, क्लियर। अब अगर मान लो रे रिवर्स ले रहे हैं, वह 2 से 1 में जा रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा, n1 by n2, तो n2 वो n12 हो जाएगा। तो व्हाट वी फाइंड इज दैट n21 is equal to 1 upon n12, n21 is 1 upon n12। यानी अगर आप रे रिवर्स करें, वाटर टू ग्लास में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा है तो ग्लास टू वाटर जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन ईटा हो जाएगा। यानी अगर पाथ उल्टा हो जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उल्टा हो जाएगा। यानी अगर ये ईटा टू 1 ग्रेटर देन 1 था तो उसका लेस देन 1 हो जाएगा, मतलब यू आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू क्लियर। दैट आर आवर कॉम्बिनेशंस हियर। ओके, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ बातें। फिर आगे चलते हैं, स्नेल्स लॉ को थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं। ओके, चलो अब चलते हैं आगे, स्नेल्स लॉ को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं ना। ये मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 1 है, मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 2 है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ईटा 2 1। एंड लिखो या n21 लिखो, ईटा लिखो, दोनों एक ही बात है। अब ये n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1 हुआ। अब when a light ray is moving from 1 to 2 it's hard and fast that I upon R ही लिखने का, पर अगर लाइट रे उल्टा लिया तो आप sin R upon sin I नहीं लिख सकते इस फॉर्मूला को। You cannot interchange R and I, बराबर। इसे लिखने में you cannot write sin R upon sin I, it looks odd। क्यों? क्योंकि स्नेल्स तो does not agree। स्नेल्स तो क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नीचे, तो हम लोग वहां पे थोड़ा लिमिटेशन वाले हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं। कैसे, देखो, सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज θ1 and angle of refraction is θ2, बराबर है। तो now according to Snell's law, according to Snell's law क्या लिखेंगे, θ21 is equal to sin of angle of incidence θ1 upon sin of angle of refraction θ2। sin of angle of incidence θ1 है θ2। also we have n21 equal to v1 by v2 एंड कैन बी रिटन एज n2 by n1, लिख सकते हैं ऐसा, बराबर है।
तो दोनों को इक्वेट करते हैं, therefore n2 by n1 is equal to sin of थीटा 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 1। ओके, तो अगर लाइट रे फर्स्ट मीडियम, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बोलता है, n1 यानी यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ थीटा 1, n2 यानी यहाँ का एंगल थीटा 2, तो n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम 1 to 2, तो इक्वेशन ये हो गया। अब अगर इंसिडेंट रे 2 से 1 आ रहा हो तो उल्टा रिवर्सिबिलिटी हो रहा हो तो 2 से 1 आ रहा हो तो क्या लिखेंगे, n2 sin थीटा 2 n1 sin थीटा, वही को इक्वेशन हो गया। यू नीड नॉट चेंज द इक्वेशन लाइक दिस, इसको ध्यान, इसको रखते जैसे इसमें चेंज करना पड़ा वैसा नहीं, अभी ज्यादा ये इजी हो गया। कैसे, गिवन मीडियम में ए वन मीडियम 1 से 2 आए तो भी n1 sin थीटा होने वाला n2 sin थीटा 2, मीडियम 2 से 1 आए तो भी फॉर्मूला रिमेन्स अनचेंज्ड। तो स्नेल्स लॉ का ये जनरल फॉर्म हो गया, जनरलाइज फॉर्म, बराबर है, स्नेल्स लॉ का ये जनरलाइज फॉर्म हो गया। क्लियर अबाउट दिस। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में sin a upon sin r इक्वल टू थीटा लिखने लिखे, उससे बेटर n1 sin थीटा इक्वल टू n2 sin थीटा, बिकम मोर इजियर टू यूज। Okay, so one of the very good and powerful formula in case of numericals. Rather than taking Snell's law, go for this one. Okay, अब कुछ बातें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इसके साथ साथ में लेते हैं। We know that n21 equal to n2 by n1, मीडियम 1 से 2 जा रहा है, and we have n1 to suppose, तो n1 by n2 हो जाएगा, which is इसका उल्टा। तो अगर मीडियम 1 से 2 जा रहा है तो n2 1 है, तो मीडियम 2 से 1 आ रहा हो तो n1 2, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए। यानी आप रे अगर 1 से 2 ले जा रहे हैं, उसके लिए 2 से 1 ले जाओ तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उल्टा हो जाएगा, ये याद रखना है। फिर मान लो तीसरा चौथा मीडियम कनेक्टेड है, अब इसको ध्यान में रखें, फॉर मोर देन 2 मीडियम, मोर देन 2 मीडियम इन सीक्वेंस, बोले तो मीडियम 1 मीडियम 2 लाइट रे यूं आया, यू बैंड हुआ, फिर मीडियम 3 आया, फिर लाइट रे यू बैंड हुआ, सॉरी यू बैंड, फिर मीडियम 4 आया, लाइट रे फिर बैंड हुआ, बराबर ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। 1 से 2 से 3 से 4 जा रहा है, तो पहले दो के केस में करेंगे n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2, बराबर ये थीटा 1 यहाँ पे हो गया थीटा 2, तो थीटा 2 ये भी होगा, ये थीटा 2 तो ये भी थीटा 2, तो यहाँ पे n थीटा 3 थर्ड मीडियम, तो सेकंड थर्ड के लिखेंगे n2 sin थीटा 2 इक्वल टू n3 sin थीटा 3, थर्ड फोर्थ के लिखेंगे n3 sin थीटा 3 इक्वल टू n4 sin थीटा 4। अगर देखो तो सारे कनेक्टेड है, n1 sin थीटा इक्वल n2 sin थीटा 2 इक्वल n3 sin थीटा 3 इक्वल टू n4 sin थीटा 4। यानी कोई भी मीडियम फर्स्ट से लेके 4 को भी कंपेयर करना हो तो यू कैन यूज द जनरलाइज्ड फॉर्म, फर्स्ट मीडियम का n1 sin थीटा 1, फोर्थ मीडियम का n4 sin थीटा 4, तो यू कैन डू दैट वे आल्सो। क्लियर। फर्दर इसी के कॉम्बिनेशन में 1 and 3 चाहिए तो क्या करेंगे, eta 3 रिस्पेक्ट टू eta 1, दैट इज eta 3 अपॉन eta 1, बराबर है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय eta 2 कर दो, eta 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कर दो, तो हो जाएगा eta 3 अपॉन eta 2 इनटू eta 2 बाय eta 1, ये हो गया ना। eta 3 2 क्या होगा, eta 3 अपॉन eta 2 eta 3 2 इनटू eta 2 अपॉन eta 1 यानी eta 2 1, तो n3 1 इज n3 2 इनटू n2 1, बराबर है। यहाँ पे अगर लिखना हो तो n4 1 लिखना है, तो n4 1 विल बी n4 3 इनटू n3 2 इनटू n2 1, ले सकते हैं ना ऐसा। You can understand the sequence how we place it. So this way you can have multiple media also separated, multiple media also you can deal here. Okay, ये कुछ बातें हो गई जनरल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ पर से, बुक में कुछ मिलेगी कुछ नहीं भी मिलेगी, ये इसीलिए ले रहे हैं ताकि हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो जाए इसके बारे में। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, स्नेल्स लॉ हमारे लिए रिफ्रैक्शन में, इससे उसको जनरलाइज करके हमने इसको देखो कहाँ कहाँ अप्लाई करनी है, इसीलिए इतना डिटेल्स लिया। आप दो और फिल्म लेते हैं, लेटरल शिफ्ट की बातें करते हैं एंड दूसरा सनराइज सनसेट के साथ में कनेक्ट। सो नेक्स्ट लेते हैं इफेक्ट, एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन, लेटरल शिफ्ट। अगर मान लो आपके पास एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब यू हैव इट समवट लाइक दिस, दिस इज अ ग्लास स्लैब, बराबर है। अब यहां से लाइट रे आ रहा है,
A light ray incident on the surface, let's say AB, CD is the glass slab. A light ray PQ is incident on the surface at point Q, normal to the surface हो गया. अब यहाँ एयर है, ये ग्लास है, तो ऑब्वियस है ग्लास इज मोर ऑप्टिकल डेंस, ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होती है ग्लास की, तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा, रादर देन मूविंग स्ट्रेट द लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यू बेंड हुआ एंड आर पॉइंट आया. लाइट रे को जाना था स्ट्रेट लाइक दिस, बट ड्यू टू दिस मीडियम चेंज ग्लास इट कम्स आउट दिस वे, यहाँ पे ग्लास में यूं आया. फिर तीसरा देखें तो यूं आया. फिर एट पॉइंट आर इट अगेन रिफ्रैक्ट्स, क्योंकि ग्लास से एयर में आ रहा है, एंड रिफ्लेक्ट होके इट गोज लाइक दिस, बेंडिंग अवे, क्योंकि डेंसर टू रेयर आ रहा है तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. बराबर है, तो ये हो गया आर एस ए. इंसिडेंट रे पी क्यू, इंसिडेंट रे पी क्यू emerges out as RS. Incident ray PQ emerges out as RS. एयर में ही वापस आया, एयर से ग्लास से होता हुआ एयर में वापस आया, तो इन्हें बात क्या लिया PQRS. अगर मान लो ग्लास स्लैब नहीं होता तो दिस वुड हैव गॉन लाइक दिस अलोंग PQ. अगर ग्लास नहीं होता तो इट वुड हैव गॉन अलोंग PQ लाइक दिस, सीधा सीधा चलता, और ग्लास के कारण शिफ्ट हो गया, RS से बाहर आया. अगर ये ग्लास ना होता तो रे वुड हैव मूव्ड अलोंग PQT पाथ पे जाता, पर ड्यू टू ग्लास है PQRS पाथ लिए. तो इमर्जिंग देखो तो एयर में इमर्ज कैसा हुआ, T किधर जाना था उसके लिए S से बाहर निकल रहा है, यानी कि लाइट रे है शिफ्टेड बाय दिस मच. अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखे कितना शिफ्टिंग हुआ, दैट्स कॉल्ड लेटरल शिफ्ट D, दैट्स कॉल्ड लेटरल शिफ्ट D ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब. अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो इट वुड हैव गॉन स्ट्रेट, पर ग्लास स्लैब है इसलिए RS जितना शिफ्ट होकर बाहर निकला, इसलिए RS जितना शिफ्ट होकर बाहर निकला. ओके, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो इट वुड हैव गॉन स्ट्रेट, बट ड्यू टू ग्लास स्लैब इट हैज शिफ्टेड, द एंटायर रे हैज शिफ्टेड ऑन अ साइड, पूरा रे साइड में शिफ्ट हुआ है. इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट. एंड लेटरल शिफ्ट को हम लोग हमारी बुक में उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं की है, हम लोग उसका फॉर्मूला नोट कर लेते हैं. यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला देता हूँ लेटरल शिफ्ट का. लेटरल शिफ्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ ऐसा है, D इज इक्वल टू T इंटू साइन ऑफ θ2 माइनस θ1 अपॉन cos θ2, ऐसा फॉर्मूला कुछ है. Where T is the thickness of the slab, T is the thickness of the slab, कितना शिफ्ट हुआ D जितना, साइन ऑफ θ2 θ1, θ1 is the incident ray, incident angle, and θ2 is the refraction angle. Okay, θ2 is refraction angle, तो T sin θ2 minus θ1 upon cos θ2, ये फॉर्मूला है इसका. ये साइन एंड कॉस में शायद कुछ अदला बदली हो तो आई विल करेक्ट इट. देयर इज अ माइनर करेक्शन, हम लोग इसको D के बदले x बोल देते हैं, लेटरल शिफ्ट का x बोल देते हैं. x इज गिवन एज T इंटू साइन ऑफ θ1 माइनस θ2, नेगेटिव हो जाएगा तो θ1 इज बिगर देन θ2 राइट नाउ, तो T sin θ1 माइनस θ2 अपॉन cos θ2, दैट इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल शिफ्ट. ओके, तो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला T थिकनेस ऑफ द स्लैब, θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, θ2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपॉन cos θ2. ओके, ये हो गया रिगार्डिंग लेटरल शिफ्ट. नो डाउट ये फॉर्मूला हमारी बुक में नहीं है, इसलिए यहाँ पे तो कोई सम आएंगे नहीं एज फार एज स्टेट बोर्ड इज कंसर्न, पर while attempting competitive exam there might be some need of this. ओके, चलो फिर अगला देते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन सनराइज एंड सनसेट. सनराइज एंड सनसेट पे क्या इफेक्ट होता है रिफ्रैक्शन का वो देखते हैं. सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ है, बराबर है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं. वी आर स्टैंडिंग हियर, वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ एंड वी आर ऑब्जर्विंग द सन. तो हमारी जो हॉराइजन क्या होगा, तो हमारी आंख की लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऑफ आवर आई इज द हॉराइजन. हॉराइजन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू अर्थ सरफेस, तो हम जहाँ खड़े वहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करें तो ये हॉराइजन हो गया सीधा. वी व्यू इट दिस वे, तो दैट इज द हॉराइजन फॉर अस. तो यू सी द
दूर तक हमारे लिए हॉराइजन है, यहाँ पे एंड इस तरफ भी। ओके, अब सपोज सन इज राइजिंग फ्रॉम हियर, सन जब हॉराइजन से ऊपर आएगा, हमारे हॉराइजन से ऊपर आएगा तो सनराइज हुआ बोलते हैं। सन व्हेन इट कम्स अबव द हॉराइजन, फॉर अस इट इज अ सनराइज। इफ इट गोज बिलो द हॉराइजन, फॉर अस इट इज सनसेट। बराबर, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अर्थ के डिफरेंट पोजीशन पे क्यों सनराइज सनसेट अलग अलग टाइम पे होते हैं, क्योंकि हर एक की पोजीशन अलग है, हर एक का हॉरिजॉन अलग अलग है, इसलिए हर एक के लिए सनराइज सनसेट का टाइम अलग होता है। चलो हम लोग फिलहाल यहाँ पे अपने बात करें तो हम यहाँ खड़े हैं, वी आर ऑब्जर्विंग द सन, लाइट रे, सॉरी सन अभी फिलहाल राइज नहीं हुआ, स्टिल इट इज नॉट अबव हॉरिजॉन। तो यहाँ से निकलती हुई रे यूं आई मीडियम में, इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, वैक्यूम टू एटमॉस्फेयर, तो रेयर टू डेंसर इट बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एंड हमको बेंड होके हमको यूं रिसीव हुआ। ओके सॉरी, ये बेंड हमको ओके हमको यूं रिसीव हुआ, लाइट रे यूं आया, मूविंग फ्रॉम वैक्यूम टू एटमॉस्फेयर, वी फाइंड ए लाइट रे बेंड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो हमको यूं दिखाई दिया। पर हमारा दिमाग क्या सोचता है, लाइट रे ऑलवेज ट्रैवल्स ऑन स्ट्रेट पाथ, माइंड इज अकस्टम्ड टू इट, लाइट रे हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ही आता है, तो हमें क्या लगेगा ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, हमें लगेगा लाइट रे यहाँ से आ रही है, मतलब कि सन राइज हो चुका है, फॉर अस सनराइज हो चुका है। एक्चुअली नहीं है, सन बिलो है, सन इज राइट नाउ बिलो द हॉरिजॉन, पर हमें ऐसा लगता है जैसे सन यहाँ पे अभी फिलहाल, यानी कि सनराइज हो चुका है। तो हमें सनराइज होने से थोड़ा जल्दी, हमें सनराइज होने से थोड़ा जल्दी पता लग जाता है कि सनराइज हो चुका है। इट अपीयर्स टू अस लिटिल बिट अर्लियर देन द सनराइज, एंड इससे विपरीत आफ्टर सनसेट हैज हैपेंड, द ऑपोजिट इट, आफ्टर सनसेट हैज हैपेंड, लाइट रे यूं आया, बेंड होके हमें यूं दिख रहा है, तो हमें लगता है जैसे अभी तक सनराइज सनसेट हुआ ही नहीं है, अभी तो सन नीचे जा रहा है, हमको यहाँ दिखेगा। ओके, अब ये एंगल जो बेंडिंग हो रहा है इट्स रफली 1 डिग्री, सॉरी 1 और 2 मिनट जितना है, जिसके कारण यहाँ फर्क कितना पड़ता है, तो यहाँ पे 2 मिनट का टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब से, यहाँ पे भी 2 मिनट का। मतलब क्या हुआ, सनराइज एक्चुअल सनराइज के कंपेरिजन में 2 मिनट जल्दी हमें सनराइज दिखता है, अंदर नीचे अभी भी, पर हमें ऊपर दिख रहा है। वी फील सनराइज अकर्ड जस्ट 2 मिनट बिफोर इट्स एक्चुअल सनराइज, यानी 2 मिनट जल्दी हमको सनराइज दिखता है। ऑन द अदर साइड सनसेट हमको 2 मिनट लेट तक दिखता है, हमें यहाँ सेट हो गया फिर भी हमें दिख रहा है यहाँ पे, मतलब भी सेट होना बाकी है, तो हमारे लिए 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी हमको सनसेट देखने में, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो 2 मिनट यहाँ जल्दी, 2 मिनट यहाँ लेट, मतलब टोटल 4 मिनट दिन हमारे लिए बड़ा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। थैंक्स टू रिफ्रैक्शन वी गेट एक्स्ट्रा 4 मिनट्स। तो बोलोगे 4 मिनट में क्या फर्क पड़ता है सर? Do I need to tell what is the importance of 4 minutes? What is the importance of 4 minutes? Hope you understand. एग्जाम में, टेस्ट में लास्ट 4 मिनट हमें बहुत कुछ चेंज करवा सकती है। हम स्टार्टिंग के मिनट्स को इंपॉर्टेंस दे देते, पर लास्ट 4 मिनट्स और 5 मिनट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कितना फास्ट भागते हम लोग। होप यू रिमेंबर दिस। ओके, तो ये 2 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा, 2 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा, व्हाई नॉट यूज इट? दे हमारे लिए 2-4 मिनट ज़्यादा दिख रहा है। क्यों? बिकॉज थैंक्स टू रिफ्रैक्शन। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? इसके बाद वी विल बी डीलिंग विद, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विद टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन।